What's up, guys? Welcome back to Fakana, and today we are having someone very special. His name is the AM Vlogs. So, who's AM Vlogs? वो क्या करते हैं? वो क्या कुछ करते हैं? चलिए आगे आगे देखते हैं. Boom. So, guys, today we have none other than the AM Vlogs. So, hello. Okay, again. 3, 2, 1. So, guys, today we have none other than the AM Vlogs. So, भाई, welcome to my show. Full power, no short running of bars. So, guys, जैसे कि आप जानते हैं कि अशफाक इज अ ब्लॉगर, अ डांसर, वो दूसरे को भी नचाते हैं. मेरे को तो उसने नचाया और आज उसकी जिंदगी उसे नचा रही है. So, yes, अशफाक. तेरे को भी नचा. अरे मेरे को तो मेरे गांड लगी जिंदगी. So, Ashfaq, I know about you that you dance, Yes. you're a vlogger. Can you tell us more about yourself? Like, what do you do besides all this? Besides all this, like by profession, I'm a chef. Khana. Khana. So, like, what is your favorite dish? I want to ask. Like, My favorite dish. Particular cuisine you want me to tell you or just a dish? देख भाई, मैंने ट्रैवल एंड टूरिज्म किया, उसके बाद मेरे को पता नहीं क्योंकि मैं तो बेल डेस्क पे था, तो अंदर के मेरे को पता है. सो यू टेल मी इन अ पर्टिकुलर cuisine what you like. Particular cuisine, I like Italian, and in that I like pasta. Pasta. In white sauce. So do you cook pasta? Yeah, I cook pasta. Actually, I'm an Italian specialist. Yeah. Yes. Or what about Indian? You don't like Indian? I do Indian also. I So- like Indian food also. So like you were working abroad, right? Yeah, I was working abroad. Where exactly, and how's the thing over there, and when did you come down? Actually, last year, 2019, I joined a company called Costa. Cruise company. Shit! It's a cruise company. So you were in a cruise? Yeah, I was on cruise. So मतलब पानी पानी में. अच्छा वही पानी में मतलब अगर बोट पानी में रहे तो फीलिंग कैसा है? फीलिंग मतलब फेरी बोट जैसा है Bro, एकदम? trust me, मैं तेरे को मेरा एक्सपीरियंस बताता. फर्स्ट डे मैंने एंटर किया शिप पे and I was like जन्नत. not जन्नत bro. It was like डर लगता है. अच्छा obviously this is like first time. First day मैं मेरे ड्यूटी पे गया working hours and ship is like it's going. Yeah. Okay. It was traveling and I'm like who कह रहा है ये? Okay. Who कह रहा है? So मतलब ship अभी तू ship पर था, like there are like different people from all over the world. Yes. So how's it meeting with them first time when you meet them? You see how's it, मतलब थोड़े लोग होते हैं जो अमेरिका से होंगे, यहाँ से वहाँ से सब साथ में मिलके कैसा वो फीलिंग है? like कुछ डिफरेंट है? बहुत बढ़िया फील होता है, मैं बता रहा हूँ. क्योंकि ना हमेशा से मेरे लिए नए लोगों को मिलना मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है. मेरे को बहुत अच्छा लगता है. जैसे कि मेरे से मिल रहा अरे है. तुम तो सेलिब्रिटी हो. अरे यार नए लोग क्यों हैं, हम बेइज्जती तुमसे- करा रहा है यार खाली फुकट? नहीं, मेरे को ना नए लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है. Yeah, that is a very plus point. Let me add to that. Like a plus point in like a life. You should Yeah. every day meet new people because you tend to explore more and Explore learn more. more about them. ये किसी से तो ग्रोथ समझती है अपने को कि अपन Totally. किधर स्टैंड करना है Totally, किधर totally. नहीं. Totally. तो वहाँ पे बहुत अलग-अलग जगह के लोग थे और मेरा फर्स्ट क्रूज था मॉरिशस में. Okay. And Mauritius is everybody know. Full honeymoon power. destination. Yeah. But अपन उधर सिंगल गए. अच्छा. अच्छे सिंगल है, अपन तो उधर सिंगल ही गए थे. अपन तो सिंगल ही है पर है रे ऐसे 2-3 जब चाहिए. So Mauritius में था first trip and it was too good. Okay. It was Mauritius to France island. So you were on the ship. Why did you plan to come back? Is due to COVID or what it is? Actually it's it's because because of- of COVID. Because सीन क्या था, अप्रैल में मेरे भाई की शादी थी. अगर मैं वहाँ पे शिप पे रहता तो मैं कोविड की वजह से आ नहीं पाता. हाँ भाई की शादी इम्पोर्टेंट है. obviously फैमिली भाई होता है. वही तो एक ही तो भाई है अपने हाँ को. वही. तो उसकी शादी इम्पोर्टेंट थी तो I had to sign off actually for some medical reason. I signed off and I Okay. came back. Now ship is not giving me chance to come again. मतलब वापस नहीं बुला रहे मतलब? बुला तो रहे actually. Are you trying to go back मतलब वापस? Actually what was the scene? यूरोप में सब कुछ बंद है फिलहाल. तो our company is from Europe. Okay. So right now. So अगर anyone of us want to apply for ship or want to do anything in ship, would you recommend them like what to do and how to go about it? On ship. Yeah. Yes, obvious. If you are good in your skills like cooking हो या फिर entertainment purpose में हो हाँ? या फिर Entertainment भी है? yes. Okay, so guys. On ship is like a mini state. Okay. You have everything in there. If you are interested in alcohol, I mean not drinking, पिलाने की दारू तो यार यहाँ पे बहुत सस्ती है. bartender, anything. You just have to apply through
particular shows. Yeah, There are that's it. many shows in India. So you heard it. That's how you have to do and go about it. Okay, and like when did you start vlogging? Matlab, okay, before that, before vlogging, I know that you were a dancer, a crumper, like one of my favorite dancers. I totally respect him because when we started dancing, he was already in the scene. So tell us about the dance journey. Dance journey, actually, you know, I started my dance journey when I was in school. स्कूल में ना ऐसे नहीं वैसे नहीं स्कूल में मतलब डांस करना लाइक फेयरवेल हो कुछ हो माय फर्स्ट डांस आई रिमेंबर आई डांस ऑन 10 बहाने करके ले गए दिल yeah that was the first dance after that I danced on बोले चूड़िया that dance was just like you know for that time it was good yeah totally फिर then we started our own crew me Raj Sargaonkar everybody know who is Raj Sargaonkar okay मेरे को जानते हैं तो yes please give a shout out to all your homies here please go ahead अगर राज सारगांवकर को मेरे को जानते हैं तो राज सारगांवकर को सब जानते हैं because मेरा सुरक्षा कवच है राज सारगांवकर okay तो क्या आप वही थे जो महाभारत में सुरक्षा कवच पहने थे राज सारगांवकर के साथ okay तो डांस वहां से स्टार्ट किया मैंने फिर देन आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू एंटर a professional crew called FSDC Freestyler Dance Crew. That was my first professional dance crew. Okay. And thanks to Raj Mulla who gave me chance. Okay. To come in their group और बहुत मजा आया वहाँ पे बहुत मेमोरीज बनाए बहुत कॉम्पिटिशन और सबसे बड़ी बात मैं ग्रुप में आया फर्स्ट कंपटीशन अपन लोग जीत गए. That was like अच्छा लगा. No. Yeah, obviously, as a dancer अगर अब कोई जीता है मेहनत करके तो वो बहुत satisfying है मतलब दिल को बहुत ये होता है आग लगती है छूता है वो आग बस गोवा में लोगों को कहीं नहीं लगती है उसके बारे में हम बाद में बात करें अच्छा. और उसके बाद जैसे कि आप जानते हैं कि आप you were part of A Unit Crew. Yes. So tell us more about A Unit Crew. Like after FSGC I jumped into A Unit Crew because I got an opportunity to dance with A Unit Crew और किसको नहीं perform करना A Unit Crew. Totally, very amazing crew. बहुत A huge shout out as well to A Unit Crew because they are like very much old in the scene and they have worked a lot for Goa and I don't know people who have forgotten them but we don't forget because we respect each and everyone like as artists. So you shout out to A Unit and yes. And actually we are the A Unit जब A Unit था they were the first crew to be featured on international channel that is channel V. So and celebrate मेरे को बोला and plus VH1 for a music video. Wow, that's very nice. Yeah. So is that video still on the net? Yeah, this video is still on the net. आप लोग को देखना मैं मेरे ब्लॉग में आके देखना मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. ए ये गलत बात है यार मेरे ब्लॉग में डाले यार ब्लॉग क्या पॉडकास्ट सॉरी गाना बैठ गई. So yes. So then I started dancing with A Unit Crew और वहाँ की जर्नी बहुत अच्छी थी. We have traveled many places like and सबसे बढ़िया बात A Unit में आके ना मैंने एक अचीवमेंट ली है that is I traveled Dubai that is UAE for dance मतलब वो सबसे so Dubai मतलब travel किस लिए like what was that event basically? Actually दुबई में फेस्टिवल होता है हर साल दुबई फेस्टिवल जो कि दुबई के मॉल में होता है सबसे बड़े मॉल में होता है तो वहाँ पे हम लोगों को परफॉर्म करने का चांस मिला था. That's very nice. That's very like for 1 month. और बहुत amazing था. Yeah, I've seen your stories as well. You used to put a lot of stories and stuff. Like yeah, it was very nice, very nice. Yeah. So how was the experience there? Dubai में experience was too good. Like you know, we had everything. For us, traveling was free, stay was free, food was free, everything was free. We just have to give 100%. 100% और हमको अपना टैलेंट उधर दिखाना था और वो फुल ऑन दिखाया हम लोगों ने बहुत सही everything. So now that we know that your dance journey has been so long and can you tell us like the dance style which you do was Krump and how did it change your life because Krump dance style is like very unique like people think that it's an angry dance which it isn't but you can tell us more about Krump like how it has shaped your life as well because dance usually shapes us as artists you know how it is. So how did it change your life or how did it shape your life? What did you get to learn from Krump? Actually, ये point मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ. जब when before getting into the Krump, okay, मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था. किसी भी चीज़ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था. लेकिन मेरे पास कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं था. Yeah, totally. You know, when I started doing Krump, I started getting that vibe, that feeling. Yeah, get Krump is not about showing your anger. Yeah, Krump totally. is all about showing what you have inside you. Yeah, totally. Everything. मेरे को goosebumps आ रहे हैं.
मेरे को नहीं आ रहा। जो भी तेरे पास है वो तू दिखा, लाइक व्हाटएवर यू आर गोइंग थ्रू, Yeah, like स्टोरी है। story, like हाँ, whatever. आजकल तुम्हारी स्टोरी कोई, अगर मैं ऐसे बैठ के तेरे को स्टोरी बता रहा हूँ, ब्रो मेरे लाइफ में ऐसा हुआ, तू नहीं सुनेगा, हाँ, क्योंकि obviously. तेरे को कुछ नहीं यार लेना देना है मेरे स्टोरी से। बट वही स्टोरी मैं तेरे को अपने क्रम के थ्रू दिखाऊंगा कि मैं उस पेन से गुजरा हूँ, तो Yeah. तेरे को लगेगी स्टोरी है कि? Totally. तो दिस इज वेयर आई डेवलप दैट जज्बा कि एंगर को कम कर सकते हैं हम लोग यहाँ से, और मैंने बहुत कम किया। अभी मेरे को कोई भी ऐसे रास्ते में जाके गाली भी मारे ना, तो मैं उसको फर्क नहीं गाली पड़ता। नहीं मारूंगा। हाँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि Totally. मेरे को पता है मैं क्या हूँ। तो क्रम ने बहुत चेंज किया है, बहुत। और like क्रम तो हो गया, like with that style you were in different crew, which is the like biggest competition that दुबई वाला तो event हो गया, so which is the biggest competition that you all have gone through and like you all have learned a lot and you all have won, you can mention it like. Yeah, actually the biggest competition was Swag Bash. Okay, where was that exactly? It was in Mapsa only. Mapsa, You okay. know, Okay, याद है मेरे Swag को Bash. उधर बोडगिनी के उस साइड। हाँ, हाँ, सब याद इधर है। ही था। तो actually there were So many, उस टाइम तो ये भी crew थे हम लोग के, Demolize with हाँ, there, बहुत और लोग थे, Demolize is very amazing crew. yeah, बहुत बहुत बढ़िया crew, and they have performed in Dance Plus. Dance also. Plus, so we don't want to share it, just son. तो वहाँ पे परफॉर्म किए, और वहाँ पे हम लोगों ने एक्चुअली सोचा नहीं था कि हम लोग जीतेंगे, बट वहाँ पे हम लोगों को फर्स्ट प्लेस मिला, एंड दैट वाज गुड। बट वहाँ से सीखने मिला है ना कि इतना करके रुकने का नहीं है। हाँ, totally. हाँ, We cannot stop. Like even though like we do so much and then we don't achieve or we go down, we cannot stop, right? yeah, We have to just keep going because we know this is It's one like- life. every day you learn is just 20% of what you learn. Totally agree. हर दिन नॉलेज बढ़ते जाता है, हर दिन, इन एवरी फील्ड, टुडे कुकिंग, डांस, एक्टिंग, एवरीथिंग, हर दिन टैलेंट बढ़ते जाता है। तो हर दिन जितना भी तुम सीखते हो बस 20% होता है, तो यू शुड नेवर स्टॉप लर्निंग। तो यही कुछ है, तो हम सीखे हैं कि रुकना नहीं है, बस चलते रहना है। Yeah, that's a very like important point. Like मतलब we should never stop. So अब आते हैं अब अपने आप एग्जांपल देख सकते हो, अगर रुकना होता ना तो भैया ये अरे भैया MTV पेंट्रोल सुपरस्टार स्टाइल ये जीतने के बाद रुक सकते थे, क्योंकि इसके पास एक टाइटल है, वो चैनल का टाइटल है, प्रॉपर नेशनल चैनल, नेशनल टेलीविजन का टाइटल है उसके पास, वो रुक सकता था, बट वो बंदा रुका नहीं, क्योंकि उसने अभी रोडीज में ट्राई किया, और रोडीज में टीवी राउंड तक आया, और मतलब छा गया है कि नहीं, वो चाहे तो रुक सकता था, और मतलब सही कि नहीं? मेरा ये भी कहना है कि अभी लोगों को लग रहा होगा कि मेरा यही जर्नी खत्म हो गया, पर आई एम नॉट इनटू बॉलीवुड, पर मैंने यहाँ पे गिव अप नहीं किया रोडीज में, मैं वापस आऊंगा वही शो में और वापस जर्नी तक जाऊंगा, ये मेरा वादा है, फुल पार। So now that you have told us like about your cooking and like dancing, so now let's talk about the vlogs, how that journey came in, right? Okay. Like this all we have seen now. Now tell us more about your vlogs and why did you like started vlogging and what is the main reason behind it? Okay, so first of all, I started vlogging in 2018 18. when I came from Dubai. Yeah. अच्छा, तो जब मैं दुबई में था ना, मेरे को लगा कि अगर मैं ये मेमोरीज कैप्चर करता हाँ, तो कल चल के मैं किसी को दिखा पाता दिखा सकते कि हैं। मैं दुबई घुमा, मतलब दुबई में इस जगह पे गया था, उस जगह पे, नॉट शो ऑफ, Yeah. बट इट्स अ मेमोरी। Memory. कल Totally. चल के मेरे को बच्चे होंगे, मैं बूढ़ा होऊंगा, तो मैं देख पाऊंगा कि मैं दुबई गया था यार, कितना सही था। तो मैंने वहां पे सोचा, और जब मैं गोवा आया था मैंने सोचा कि मेरे को शुरू करना है। और सबसे बड़ी बात, मैं YouTube पे जाता हूँ, मैं ज्यादा कुछ नहीं करता, आई वॉच व्लॉग्स, आई वॉच रॉ कंटेंट्स, Okay. रॉ कंटेंट्स लाइक व्लॉग्स और पॉडकास्ट एंड एवरीथिंग। Okay. तो मैं MSK Okay. is by the way, MSK got award yesterday only that Asia's #1 vlogger. तो MSK को देख के मैं मतलब इतना कि हो रहा है ब्लॉग, अच्छा लग रहा है कि ये अपनी मेमोरी कलेक्ट कर रहा है, मेमोरीज कल्चर की, ये देख सकता है मेमोरीज को। तो दिस इज द रीजन आई स्टार्टेड व्लॉगिंग कि आई वांट मेमोरीज विद मी। Totally agree. हाँ, like the same reason I also do vlogs, मतलब वो capture, वो moment capture, जैसे कि मैंने ये MC Stan का vlog किया, हाँ, मतलब वो मजे के लिए करते हैं हम That's लोग, what- लोगों को लगता है कि हम लोग दिखा रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, but it's not that, guys. Like we are doing it for the fun, like we are capturing moments, like Yeah. that's what we are trying to show, like that's the story what we are trying to tell, you know, right? और लोगों को लगता है कि हम लोग YouTube चैनल क्यों स्टार्ट करते हैं, बिकॉज हाँ, पैसा कमाना है, पैसा आता है, पैसा कमाना है, पैसा आता है, नहीं वो सेकेंडरी थिंग है। yeah, कोई भी ये सोच के YouTube चालू नहीं करता है कि YouTube चालू करना और पैसा आएगा, है कि नहीं, वो सेकेंडरी थिंग है।
अपन YouTube क्यों चालू करते हैं? क्योंकि अपने पास मेमोरीज रहते हैं, वी कैन एंटरटेन पीपल. जब पीपल एंटरटेन होते हैं और जब लोग बोलते हैं ना कि यार तेरे ब्लॉग देख के आज मजा है, मतलब मूड खराब था लेकिन तेरा वीडियो देख के अच्छा लगा, और मेरे को ये लिटरली कमेंट्स आते हैं, ये लिटरली डीएम्स आते हैं मेरे को, मैं सोचता हूँ कि नहीं करने का ब्लॉग, बट ये कमेंट, ये मैसेजेस पढ़ के ना मेरे को अंदर से मोटिवेशन आता है. Yeah, and then we tend to keep going more and keep Yeah. creating more content. Although like content creators don't have everything, but we work hard. So I've known content creators who don't have anything, like they don't have laptops, like they don't have gadgets, but still they try to do it with phones, still they try to do with this and that makes a like a content Yeah. creator actually a content creator. Myself, मैंने खुद, मेरे पास लैपटॉप नहीं था, कुछ नहीं, भाई के बाद भाई ने पूरा मेहनत किया है. मैंने 30 या 25 व्लॉग्स फोन से शूट किया, फोन पे एडिट किए. बहुत सही, बहुत सही. फिर मैंने मतलब मेरे भी तो जो ज्यादातर व्लॉग्स है वो सब फोन पे ही है. हाँ वही तो, अपनी कमजोरी को अपना एक Yeah. skill मत बनाओ, मतलब स्टॉप मत बनाओ, Totally. उससे ऊपर निकलना सीखो. तो बस यही है. So like, who are your favorite vloggers? Like, okay, just give me top 3 from India and top 3 from Goa. अच्छा, टॉप 3 फ्रॉम इंडिया. फर्स्ट इज ऑब्वियसली इट्स MSK मोहम्मद सलीम खान. Okay. He's a motor vlogger. Second one is Aman Jain. He's a travel vlogger from Mumbai Plus. And third one is Jet Prabjot. He's from Delhi. He's also a motor vlogger. So जैसे कि He's हमने like ये 3 favorite vlogger है भाई के. और गोवा से हाँ. फर्स्ट मेरी फेवरेट ब्लॉगर है, बिकॉज शी इज डूइंग समथिंग आउट ऑफ द स्टैंड. वो कौन है? वो थोड़ी के. Okay. Just because I said Okay. एक्चुअली नहीं, अब लोगों को लगेगा कि मैं ये अच्छी दिखती है इसके लिए मैं इसका नाम नहीं, मेरे को उसका कंटेंट अच्छा लगता है. Okay. The way she makes vlog, वो स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छे से बताती है यार. एंड शी इज लिटिल Anela. Wow, like a huge shout out because Anela is like my classmate and I've seen her hard work. Like she's Yeah. working hard for her content and she has like 10K subscribers. So whatever it is, we give a huge shout out to Anela, full power. Huge shout out to Anela. अब चल आजा दूसरे पे और तीसरे. दूसरा is he is actually a fashion vlogger. Okay. He's actually a dancer. But उसका मेरे को एक अलग कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है. हाँ. That is Desi Deadpool. That is me, man. Actually में I like that character of you. your Desi Deadpool. मतलब वो vlog देखते वक्त ना ऐसा नहीं था कि यार क्या बना रहा है, तू कुछ भी बना, वो कैरेक्टर जो बना रहा है. Yeah, like मतलब मेरा क्या है चैनल में, मतलब मैं क्या फोकस करता हूँ कि I give dance. हाँ. So that people see dance, they're inspired. Then I give, like, I started this podcast, right? Yeah. People see and learn something. This is not because I'm doing it. I'm doing so that people know people like him who are working so hard. And then you have my vlog, which is just the chutiagiri of me. नहीं. देसी डेडपूल, आई एम टेलिंग, देसी डेडपूल बहुत सही कैरेक्टर है. मेरा तो फेवरेट कैरेक्टर है देसी डेडपूल, बिकॉज देसी डेडपूल को देखते वक्त वो वाइब आता है यार, मजा आता है, समझ रहे. तो सेकंड इज यू एंड थर्ड ब्लॉगर फ्रॉम गोवा. थर्ड तीसरा ओके, मेरे को लगा तू कट कर. नहीं. थर्ड ब्लॉगर फ्रॉम गोवा इज फ्रॉम माफसा. नोवेयर, बिकॉज गोवा में मेरे को और कोई ब्लॉगर अच्छे लगते नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग. Sorry guys. फ्रैंकली स्पीकिंग. Sorry guys, but you're the unlucky motherfucker. I'm नहीं, so अब sorry. बहुत लोग मेरे फ्रेंड लिस्ट में भी बहुत लोग हैं जो ब्लॉगिंग करते हैं. अब वो लोग बोलेंगे कि यार तुमने हमारा नाम क्यों नहीं लिया. लेना चाहिए था, बिकॉज ब्लॉगर्स हैं गोवा में. ब्लॉगर्स हैं गोवा में, कर रहे हैं, सब हार्ड वर्क कर रहे हैं, सब कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन पसंद आना चाहिए ना. हाँ, मतलब everybody has their own perspective of हाँ, like वही. seeing each other. मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम लोग गलत कर रहे हो, तुम लोग कुछ अलग कर रहे हो या फिर कुछ और कर रहे हो. तुम लोग कर रहे हो, तुम्हारे हिसाब से तुम लोग कर रहे हो अच्छा, बट मेरे को वो नहीं पसंद आ रहा है. व्हाट आई वांट इज स्टोरी टेलिंग. Totally. स्टोरी टेलिंग. जैसे यू टेक माय व्लॉग्स, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ. No, टेक माय व्लॉग्स, definitely. यू टेक माय व्लॉग्स. मेरे व्लॉग में एक स्टोरी होती है. Yeah, totally agree. And like Everybody I've seen want- something about your vlogs. It's like you capture all the moments. That is Yeah. very specific. Like, whether it's wedding or whether it's you're going for a chai or whatever the fuck it is, but you capture everything. So that those moments are very special, which people don't understand. Yeah. Like then we
need to understand, you know. That's what people लोगों को लगता है, क्या बताया कि vlogging start करना है तो वही दिखाना है कि जो अच्छा है अपने पास, है ना. Okay. लाइफस्टाइल ब्लॉगर, लोग बोलते हैं कि लाइफस्टाइल ब्लॉगर ना रहने के लिए घर होता नहीं. सॉरी टू से दिस, बट रहने के लिए घर होता नहीं है. बट उनको क्या लगता है कि अपने को दिखाना है कि अपन ऐसे बड़े हैं, ब्लॉगिंग में दिखाना है. ऐसे लाइफस्टाइल ब्लॉग नहीं होते. लाइफस्टाइल इज व्हाट लाइफस्टाइल यू आर लिविंग इन. Totally agree. एग्जैक्टली राइट. तो लाइफस्टाइल दिखाओ, नो मैटर व्हाट इट इज. तो मेरे भाई की शादी थी विलेज में, तो मैंने वो दिखाई, क्योंकि अपन लोग ऐसे ही करते हैं. दिस इज व्हाट आवर लाइफस्टाइल इज. Yeah. तो मैंने दिखाई, लोग वही मतलब in India itself, like we have like different cultures. Like अच्छा. दूसरे लोगों दूसरे आपका शादी होता है, जैसे कि हो गया क्रिश्चियन वेडिंग. भाई लोग मैं आपको कुछ बताता हूँ, ये दो कितने दिन पहले 3 दिन 3 दिन पहले मैंने एक क्रिश्चियन वेडिंग अटेंड की. एंड मतलब तू जानता है मैं फुल ऑन हो गया. मतलब भाई भी था उधर, शूटिंग चालू था. अक्षय was there, If my you want to friend. see the raw footages of how he was for wedding, then मेरे को DM करना Instagram पे, मैं बता दूंगा पक्का. Shit, and I I'll was, send you all. and it was like totally fun. So like there are different cultures, you know, like, and like capturing one shadi or the other shadi shows like how the cultures are, because a culture is very much important in India, you know. A culture plays an important role. So जैसे कि तू जानता है, we met for a wedding अच्छा 2 days back, 3 days. 3 days back. That is one of my best friend's wedding, her sister's wedding, and I was totally gone. And like that's what we are talking about, different cultures. Like everybody has like different cultures, and then you shot your brother's wedding, which Yeah. will be a different culture at all. That's true. मतलब एक हाँ. different culture है. So like yeah, we need to show everything like in vlog, you know, right? So I really admire like how you're doing your content and how you're going about it. And my reason to get you for my podcast is because this is how my people will watch you. I don't mind if whether I have like 10 people, but those 10 people watching you means a lot for me. That's true. Because you're doing a lot of like stuff, you know. Means a lot. Thank you. Or now, I wanted to ask, now you started, we did this cuisine, उसके बाद हमने डांस किया, उसके बाद हम ब्लॉगर बन गए. हाँ. मतलब हाँ, तेरे में ये तीनों चीज तो है. What about anything else besides this you do? Besides this, what I do nothing besides this. मतलब Because- कुछ भी नहीं. कुछ भी नहीं, but see, I do basically, I take videos for editing. Okay, that's very nice. That's what I started recently. Recently. Last month. If you have your videos, if you have your footage, if you want to edit, मैं तेरे को offer नहीं कर रहा हूँ. लेके जा. If you have, I'm giving example, then give it to me. Okay. लेके जा निकल. क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि शूट करते हैं, उनके पास शूट करने के लिए फोन होता है, बट एडिट करने के लिए उनके पास लैपटॉप गैजेट नहीं होता नहीं है. होता हाँ. है. Yeah. तो आई डू इट. Yeah. मैं करता हूँ, बट फ्री नहीं, बिकॉज नथिंग इज फ्री. Nothing is free in this Nothing world, is free in and this we need to world. understand that creators work very hard. Like whether he's editing the video or whatever he's doing, he's putting in a lot of efforts. So you shout out to you, brother. Like, मतलब Thank you बहुत so much. editing is very tough. Like you have to put a lot of brains. और Okay, जैसे- और ऐसा भी नहीं कि मैं एकदम ऐसा प्रो लेवल का एडिटिंग करता हूँ, बट नॉर्मल फॉर Normal. रील Yeah. रील वीडियो. मैंने रिसेंटली लास्ट 2 वीक में 3 रील वीडियो एडिट की है. वन वाज फ्रॉम गुड़गांव, द गाय वाज फ्रॉम गुड़गांव. That offer was given to me by CaptureX India. Thank you so much. मेरे Yes, भाई. CaptureX India is one of my favorite photographers, and I know that you work with their team. So I want to ask, like working with Leon, these people are very good with their work. Yeah. And how's the experience like working with them? Like That you know- was actually the wedding what we met. That was my first wedding. first setting, okay. First wedding in sense. That was the first time I worked with CaptureX India and हाँ, team. मैं सोचा walk with the bride. No, भाई. Not work, bro. Work. Okay. Work with CaptureX India. तो first time मैंने काम किया and it was too good. बहुत अच्छा experience. देख तू किसके साथ भी काम कर, वहाँ से तेरे को अलग अलग Also, चीजें I don't सीखने want to like interfere, but we Yeah. have to say that CaptureX India has hit 10K with Woo! a lot of hard work. Lot So, of hard work. yes. बंदे ने बहुत कुछ देखा है बहुत लाइफ मेहनत में. की, बहुत मेहनत की. So yeah, you were saying something like you want to go in front with हाँ, that. तो फर्स्ट टाइम मैंने उनके साथ काम किया है. आई असिस्टेड अक्षय, आई मीन CaptureX India. तो एक्सपीरियंस बहुत अलग था, बहुत कुछ सीखने मिले. बेसिकली नॉर्मली आई असिस्ट राज सालगांवकर, जो मेरा भाई है, मेरा सुरक्षा कवच. सो आई असिस्ट हिम. वहाँ से भी मेरे को बहुत सीखने मिला. तो जब मैंने CaptureX India को असिस्ट किया, वहाँ से मेरे को बहुत सीखने मिला, बट अलग. दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट.
ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी सेम सीखा मैं वहाँ पे भी सेम सीखा, अलग है क्योंकि दोनों के स्टाइल्स अलग हैं, टोटली टोटल वर्क करने के स्टाइल्स दोनों के अलग हैं, तो मेरे को अलग अलग चीज़ें सीखने मिली। अगर मेरे को कल को तू भी बुलाएगा असिस्ट के लिए फॉर योर कॉमो कलेक्शन तो मैं आऊँगा क्योंकि मेरे को वहाँ से भी कुछ अलग सीखने मिलेगा, आई गेट टू लर्न समथिंग न्यू। तो सी फॉर मी लर्निंग इज फर्स्ट प्रायोरिटी, मेरे को सीखना बहुत पसंद है चाहे वो कुछ भी हो, बट नॉट पढ़ाया। पढ़ाई मेरा तो छोड़ ही दो भाई लोग, मैं तो कोविड की वजह से पास हुआ, नहीं तो मैं पास नहीं होना। नहीं वैसे मैं पास हुआ, I'm a bachelor, है ना, I hold bachelor's degree but in hotel management। सही है बहुत सही है। So like वही मैं बोल रहा था, like I also like collab with lot of creators, like you know my thing is that I get lot of ideas and what they do is like they put it in their way, so like I just give them ideas and then when it comes to editing and all they take care of it. So I really respect all the like video editor and stuff because they are putting lot of efforts and like lot of people जैसे कि जानता होगा कि मैंने they are always asking them for free, you know, free work, which is very wrong and like तुझे क्या लगता है, मतलब मुझे एक चीज़ पर्सनली पूछनी थी, लाइक डू यू गेट मोर सपोर्ट फ्रॉम इन हाउस दैट इज गोवा और डू यू गेट मोर सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड, यू अंडरस्टैंडिंग मोर कमेंट्स मोर सपोर्ट, लाइक यू हैव टू टेल दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, यही तो इम्पोर्टेंट है, यही तो वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट नाउ व्हाट आई एम गेटिंग ऑन माय चैनल, मेरे को गोवा से सपोर्ट करते हैं बट वही लोग जो मुझे जानते हैं, जो मुझे जानते हैं और जो लोग को लिटरली मेरा कंटेंट पसंद आता है, थोड़े लोग, ओके और ऐसे बहुत लोग हैं। मेरे पीछे बहुत लोग बात कर रहे हैं, ये यहाँ से वहां से तेरे को सुनाई देती है, बहुत लोग बात कर रहे हैं, बट इट्स ओके फाइन, लिव इट, क्या करना है वो लेके हमको। लेकिन मेरे को ज्यादातर सपोर्ट मिलता है बाहर से। सॉरी अगर मेरे सब्सक्राइबर भी यहाँ देख रहे हो, अगर तुमको लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में गलत बात कर रहा हूँ, नहीं, तुम लोग के बारे में नहीं, तुम लोग मेरे सब्सक्राइबर, यू गाइज आर माई फैमिली, ओके you guys are my family, I'm not talking bad about you, but वो लोग जो है ना मेरे को DM करते हैं कभी कभी लोग कि ब्रो यू आर डूइंग दिस, डू समथिंग प्रोडक्टिव। अच्छा, मेरे को आया लिटरली, मेरे को ऐसे DM आया प्रोडक्टिव, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि शादी कर लो क्या। That's what I'm saying कि व्लॉग कर रहा हूँ ब्रो, व्लॉगिंग इज नॉट इजी। या टोटली, व्लॉगिंग इज, लोगों को लगता है कि कैमरा उठा के बात करना है बस डाल देना, ऐसे नहीं होता है। या टोटली, यू हैव पोस्ट वर्क टू डू, yeah, and pre-work also, and you have to think like what you have to what you're trying to show. You're just not trying to show anything, just pick up your camera and just go out and shoot some animals on your video, look at them and bakchodi pel diya, ऐसे नहीं होता है। नहीं, like there's a lot of story if we see like। हाँ, और व्लॉगर्स के लिए ना एक बात हमेशा खटकती है कि देखो मैं अभी ये शूट कर रहा हूँ, ये मेरे कम्युनिटी गाइडलाइंस को हर्ट नहीं होना चाहिए, ना किसी को हर्ट होना चाहिए, हमेशा हमको दिमाग में रख के शूट करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कंटेंट शूट करते हैं बट जब एडिटिंग के लिए बैठते हैं ना तब सोचते हैं कि नहीं यार ये अगर मैं डालूंगा तो किसी को हर्ट होगा, किसी की फीलिंग्स को हर्ट होगा, तो ये सोच के हमको कंटेंट डिलीट करना पड़ता है। और इसी बात पे अगर हमने यहाँ पर कुछ गलत बोला है वो हम डिलीट नहीं करेंगे, अगर वो आपको बुरा लगता है तो हम आपको जेल में डाल सकते हैं। आई एम जस्ट जोकिंग गाइस। सो यस, तो ऐसा ही है, करते हैं हम हार्ड वर्क, जब नसीब अपनी खुलेगी तब खुलेगी। अरे हो जाएगा भाई, तू बड़ा यूट्यूबर बन जाएगा, हम सब बन जाएंगे, बस करते रहना है जो भी करना है लाइफ में। सो एंड आई वांटेड टू आस्क यू, डिड कोविड अफेक्ट यू इन एनी लाइक टर्म्स, लाइक विथ योर कंटेंट, यू नो, लाइक वी वर एट होम एंड लाइक वी वर like for some people, like for me, I don't have gadgets and all, so it was kind of very fucked up for me. मेरा phone भी गाड़ मार दिया था मेरा उस टाइम पे। So like for you, how it was like? For me, because you see me when I shoot my fashion content, I'm always on the street. Why street I shoot is because I represent hip hop and hip hop is more of street, like street. Fashion is there, rap is there. So I always tend to like, I can just put my phone inside the room and like shoot some content, throw the clothes. वो फिर लोगों को वो पसंद नहीं आएगा। Yeah, because I'm trying to give a message with my fashion content. So like for me it was very bad this COVID phase because I cannot go out and shoot anything. फिर भी मैं मेरे दोस्त के साथ धीरे से निकल के कुछ ना कुछ करके डाल रहा था। So like how was it for you? Like for me, COVID didn't affect me anything. मेरे को ज़्यादा affect नहीं किया in sense of content. बाकी ऐसे ना कोविड ने बहुत कुछ तबाही मचाई है, तो वो अलग बात है, वो अलग बात है। तो कंटेंट में मेरे को क्या था, मैं कोविड से पहले ही मैं आया बाहर से, I came from abroad and then I was like I had only 3 videos on my channel that time. तो फिर like घर पे ही बैठे हैं, कुछ नहीं है करने के लिए, तो
करते हैं स्टार्ट. आई जस्ट हैड वन फोन, तो मैंने एडिटिंग के लिए कुछ है नहीं. And I know that you started during this period only, like Lockdown, continuous, yeah. क्योंकि घर which पे has था. been a very helpful thing for you. हाँ, घर पे ही था. और लोग मेरे को ना ऐसे मैसेज करते थे कभी कभी कि यार कुछ बता ना, कुछ हेल्दी फूड. और वहाँ पे लॉकडाउन में सब लोग केक बनाते थे. सबको पता है, कुकर में सबने केक देखा होगा. तो लॉकडाउन में सब केक बनाते थे, कुछ कुछ नए नए चीजें सीखते थे और सब लोग पोस्ट करते थे. मतलब लोग सीख के पोस्ट कर रहे हैं, मैं तो सीखा भी हूँ, मेरे को आता भी है, तो मैं क्यों ना करूँ. देन आई स्टार्टेड फर्स्ट वीडियो. आफ्टर दोस 3 वीडियो, फर्स्ट वीडियो वाज चाय. और चाय तेरे को पता है चाय अपने को कितनी पसंद है. मेरे को भी चाय बहुत पसंद है यार, स्पेशली अदरक वाली एकदम. ओहो, मैं तेरे को एक अच्छी वाली रेसिपी बताता हूँ. वो बाद में बता दे. वो ऑर्गेज़म कोई तो चाय वीडियो मैंने डाला, मेरे को अच्छा रिस्पांस मिला उस पर. लोग बोलने लगे कि यू आर डूइंग समथिंग गुड. मतलब हम लोग को भी कुछ सीखने मिल रहा है विद दैट रेसिपी. हम लोग को रेसिपी सीखने मिल रहा है, घर पे बैठे हम. तो मैंने स्लो कंटेंट डालना शुरू किया. बाहर जाके कंटेंट नहीं बना सकता था, तो घर पे मैंने क्या किया, मेरी बहन घर पे थी, मेरी सपोर्टर. मेरे को जो कंटेंट चाहिए था वो सब उसी के पास से आया. तो आई स्टार्टेड डूइंग चैलेंज वीडियोस, लाइक फूड चैलेंज और सम अदर चैलेंजेस, कुछ भी चैलेंज. आई स्टार्टेड डूइंग चैलेंज वीडियो. वहाँ से मेरे को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला. आई स्टार्टेड गेनिंग सब्सक्राइबर्स. तो बहुत अच्छा लगा, मोटिवेशन मिली. तो मैं रुका नहीं, मैंने बनाते गया. बट देन आई वेंट महाराष्ट्र, सोलापुर. तो वहाँ पे तो कंटेंट ही कंटेंट था अपने पास, वेडिंग दिस तो बनाते गए. कोविड ने तो मेरे को ऐसे कुछ इफेक्ट नहीं किया है पर्टिकुलरली से, कि मेरे को तो कंटेंट घर पे भी बना सकता हूँ मैं, और कंटेंट बाहर भी बना सकता हूँ. इट्स अप टू यू हाउ यू डिजाइन योर कंटेंट. Yeah, totally agree with that. घर पे And that's a very very good and very much plus point of a creator. Like like when you don't have anything or whether you have, still you create content. It's like a very big thing. That's true. So that's what I want to say. Like creators are just filled with talent and like मतलब उनको अगर कुछ है या कुछ भी नहीं है, फिर भी वो लोग कंटेंट करते हैं. बस थोड़ा दिमाग को घिसने की जरूरत होती है, फिर सब कुछ बाहर आता है. Also ये लास्ट क्वेश्चन हो सकता है, मतलब होगा क्या, करना ही पड़ेगा. So कि would you love to share some of your hustle, like मतलब तकलीफ या ऐसा कुछ. मतलब देख मैं भी भाई रोडेज में गया, पर मैंने रोया नहीं. मेरे को भी बहुत सारे ऐसे गांड मेरी भी लगी हुई है. But like would you love to share your journey of your hustle or something like that? हसल जर्नी ऐसा कुछ है नहीं बेसिकली मेरे पास तो. बट मेरी एक स्टोरी जिससे मेरे को डांस छोड़ना पड़ा और जिससे मैं डांस से थोड़ा दूर हुआ, डांस में ज़्यादा नहीं कर पाया, तो वो था कि I started studying this thing. I joined college, hotel management, which was in Vasco first, Goa. फिर कॉलेज का कुछ झोल मोल हुआ, पैसों का झोल हुआ, तो उनका मेन कैंपस था यूपी आगरा में, तो मुझे वहाँ पे जाना पड़ा. वहाँ पे नहीं जाने के लिए बहुत कुछ, मतलब ऐसे बहुत कुछ हुआ. I was the last person to stand. Okay. मैं अकेला था कि मतलब नहीं जाना, क्योंकि कॉलेज हमने यहाँ पे एडमिशन हमको यहीं चाहिए, बट बाकी सब लोग मार के चले गए. अब कॉलेज मेरे को यही बोल रही कि सब लोग चले गए तो तू क्यों यहाँ पे है. सही बोल. सब लोग को ओके है ये वाला डिसीजन, तुझे क्यों नहीं है. तो मेरे को हाथ बंद करके जाना पड़ा. आई वेंट आगरा. आई वाज देयर फॉर 2 years और वहाँ मैं बहुत कुछ सीखा. आई एक्सप्लोर्ड अ लॉट ऑफ माई सेल्फ. लाइक ताजमहल लव एट फर्स्ट साइट ब्रो. Yeah, सच्ची में एनी टाइम, बिकॉज मैंने भी ताजमहल विजिट किया. इट्स अ वेरी गुड प्लेस, बट द थिंग इज दैट द मार्बल इटसेल्फ इज गेटिंग लाइक अ बिट बिकॉज ऑफ द acid and stuff, but it's okay. उतना तो प्रॉपर्टी उन लोगों ने उस टाइम हड़प लिया है. इसको साइड में रख. लेट्स गेट बैक टू where I was. तो आगरा में मैंने बहुत एक्सप्लोर किया अपने आप को, कि मैं कभी रहा नहीं हूँ घर से दूर. मैं अपने मम्मी से दूर, मैं अपने अब्बू से दूर, कभी रहा नहीं. से दूर रह ही नहीं सकता भाई. वही, मैं कभी रहा नहीं. तो वहाँ पे मैं गया तो फर्स्ट डे आई क्राइड अ लॉट. तो बहुत कुछ हुआ मेरे साथ, क्योंकि मैं यहाँ पे तेरे को बता नहीं सकता. बहुत कुछ हुआ वहाँ पे. I can understand. बहुत कुछ हुआ. I literally I was just 1 second away from losing my life over there. Shit, dude. Like I'll tell you a frank incident. मेरे साथ भी ऐसा हुआ है. But that's a phase. And then we come up through that phase. Maybe that phase comes again, but then we have to still go on. Because we don't give a fuck, man. Yeah. That's true. तो ऐसे कुछ हुआ. वहाँ पे था 2 साल. तो मुझे डांस, that time I was dancing for A unit. तो डांस को थोड़ा वहाँ से ब्रेक देना पड़ा मेरे को 2 साल. और फिर वापस आया. देन ट्रेनिंग, ऑल दिस इंटेंसिव स्टाफ. तो फिर 3-4 साल का ब्रेक डांस में. फर्स्ट देन वापस आया. माई फर्स्ट कॉम्पिटिशन आफ्टर दैट वॉज
PODS। Oh, Pods. It's a Pods. very big event. तो वहाँ पे अपन लोग ने परफॉर्म किए, अच्छा लगा, सब कुछ हुआ, बट वो हाइप नहीं मिल रही थी क्योंकि वो ब्रेक पड़ा था मेरे से, फिर वो हो नहीं पा रहा था। और देन आई वेंट टोटली इनटू कुकिंग स्टफ एंड ऑल। फिर मेरे को वहाँ से चीजें पसंद आने लगी। And then we come through a phase of our life where we need to stand up for our family, हाँ, take care that's of them. true. That is also one of the major एंड important. इन and गोवा that's- एक बात, ये बात मेरे को रखनी है यहाँ पे कि गोवा में ना, इफ यू आर डूइंग समथिंग गुड, तेरे को कोई सपोर्ट नहीं करेगा until and unless that person know how much hard work pays off, how much the मेहनत नहीं, उसकी वैल्यू, value. द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क जब तक वो बंदे को समझती है ना, तभी वो सामने वाले को समझता है। Yeah, so it's a special request to people in Goa that it's high time we should start supporting people and Yes. stop getting jealous. Like, you know, That's true. that's how the growth will. You know why there is growth in other states? Because they are supporting They support their each other, सपोर्ट करते हैं, बहुत like we have सपोर्ट so करते many हैं। good rappers, dancers, but we don't have support. Why Mumbai has like it's had a scene because there is support. So we need to change this, That's and I hope it happens, because if it doesn't happen, me and him we won't give up because That's we true. cannot give अपन up. लोग So, करते yeah, रहेंगे। we have full power. सो ऐसे हुआ तो अपन ने वो वाला ना डांस से अपने को हो नहीं रहा था, मतलब हर परिवार चाहता है, हर फैमिली एक एट दैट एज एवरीवन वांट यू टू अर्न। Yeah, ओके, totally. मेरे को कभी ऐसे बोला नहीं कि घर पे पैसे ला के दे, कभी नहीं बोला मेरे को ऐसे सामने से, बट तेरे को लगता है ना, यू स्टार्ट गेटिंग दैट Yeah, मैच्योरिटी, तेरे को लगता है कि अब कब तक मैं बाप के पैसों पे है ना जीऊंगा, खुद का तो कुछ करना है। तो मैंने सोचा कि लेट्स कीप इट असाइड। मैंने डांस कंप्लीटली नहीं छोड़ा है। इफ यू वांट मी टू डांस नाउ आल्सो आई कैन डांस, बट Yeah. अभी मत अभी मत। तो Hype आई ज़्यादा कैन बढ़ डांस जाएगा। नाउ आल्सो, बट यू नो अपन को वो भी देखना है कि इनकम कहाँ से आती है, Totally. इम्पोर्टेंट है ना। तो बस यही है, हसल वैसे कुछ ज्यादा है नहीं। बहुत सही है bro, जो भी है it's all a hustle, whatever it is. And Yeah. I'm very glad that you came and you're a part of my podcast, and I just want to say thank you for coming, मेरे भाई। Thank you so मेरा much for support having me. Thank you so much for मेरा support having आपके लिए me. हमेशा है, so is my audience, they'll be supporting you. So that was the AM vlog with me, Vlogs. and thank you for watching this podcast. And before going, as I always say, I just want to say one thing: full power, No shower, 24 hours. Thank you so much, guys. मजा आया, मजा आया, मजा आया।